we have dashing and handsome personality, Mr. Avinash Chandra sir. Avinash Chandra sir has done is a science graduate and he has done his PGs from the business management. He has an enriched experience of more than 16 years. He worked with different companies like Care Ratings, Done, and Brand Street and StanChart like in his past career. He's also headed the Maharashtra and Goa as a zonal head for SME rating vertical at Care Ratings. And today, I mean, now he is working as a senior vice president with Yes Bank. He is into strategic business units. He is engaging in exclusively with the MSMEs, industry associations, and Chamber of Commerce and government institute, etc. And I'm happy that in a short notice, in fact, we were discussing for a long, but within a short notice, he agrees to come to our platform and help and guide our all members about the finance and funding and what are the challenges as an entrepreneur face when he are looking for the fundings or the banking for the business. So I welcome Mr. Avinash Chandra to help and guide us to understand about the business financials. Thank you very much, and I hand over the platform to Mr. Avinash Chandra. Sir, welcome. Thank you, Manojji. Once again, I sincerely thank MBC family, and I express my gratitude, happiness, both. When you talk of MSME, and the next probably thing comes as banking in this country. Rarely do we discuss MSME standalone. So I am probably a very befitting match to be here. I hope all of us are clear with the new definition of MSME. If not, I would request all of us to write in the very first page, maybe 1st January, that the definition has been changed. Now it is plant and machinery investment 1 crore and 5 crore turnover. Then it is 10 crore and 50 crore. And then you have 50 crore and 250 in the order of micro, small, and medium. Why I said this? Because when you go to a bank and when you say that I'm part of MSME, it must generate some sense of excitement in the bank. Because today in India, every bank is under pressure to cater to MSME. And this, along with agriculture and some other sectors, we call it priority sector. So I always have a difference with the people who say that banks are not keen to fund MSME. I can very confidently tell you that any bank of your choice, you can pick any bank in the country. And without knowing much, I can tell you their largest team would be for MSME. That's the value and that's the importance that you all carry as a sector, as a segment. So the moment you are into MSME, you have to be very well convinced that it is you whom bankers are looking for. I know there could be hundreds of Avinash Chandra raring to be part of this MBC. And I mean it. I am not being humble. I literally mean it. But you have to select them. You allow some Avinash Chandra to come and be part of MBC. That's the importance. That's the value that an MSME gathering or an MSME association today holds in this country. When such time comes, not many of us have experienced similar times. This COVID-19 started as the health risk. We all came under the purview of health risk. Then it went into financial risk. From March 20th, all of us are confined. And from that financial risk, this is turning into global recession. And this is same for all, be it you as an MSME, be it us
as banks or be it governments, we all are equally concerned. But my humble and sincere request to all of MBC family members would be to quickly stay away from this. If you allow this feeling to peep into you for a longer time, it will very well come and sit inside you that, oh, time is very bad. I can also tell you with my experience, and I'm sure all of you would agree, that these are the times when some new ways come out. Chandra If you, sir, sorry. sorry to disturb you, Chandra sir, but can you please speak in Hindi as well? Sure, sure. If you're comfortable, please. Thank you. Yes, yes, definitely. तो जो ऐसे टाइम्स होते हैं उसमें क्विकली हमें इस माइंडसेट से बाहर आ जाना चाहिए कि मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरी कंपनी बहुत परेशानी में है, क्योंकि इसके बाद आपके एक्शंस परेशानी वाले हो जाते हैं और आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके बैंकर्स, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो सब आपके इस बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने लग जाते हैं या फिर वो आपके लैंग्वेज को पढ़ने लग जाते हैं। और ऐसा बहुत कम होता है आपके प्रोफेशन में, आपके पर्सनल लाइफ में शायद ऐसा हो सके कि आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपके प्रॉब्लम में भी आपके साथ वही डिस्टेंस को बढ़ाए ना। बट जब आप बिजनेस में आते हैं तो कोई भी काउंटर पार्ट जो होता है वो आपको प्रॉब्लम में देखकर थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ाने लगता है। सो मेरा ये सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इस माइंडसेट को अपने मन में घर ना करने दें, that the problem is all around, we all know, and that is for everyone. So मेरा पहला रिक्वेस्ट as a banker, as a professional, as an individual, that don't let this feeling to set into yourself. As a banker, I would suggest you that 3 चीजों पर बहुत ध्यान रखनी चाहिए ऐसे समय में। मैंने कुछ जॉट डाउन किया है। जब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है आप जैसे लोगों से मिलने की, तो मैं ना तो उनका टाइम वेस्ट करना चाहता हूं और ना ही अपने मन में ये फीलिंग लाना चाहता हूं कि मैंने जस्टिस नहीं की। तो मैं 2 दिनों से प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को कि मैं क्या आपसे नया शेयर करूं। मैंने वो सारी चीजें जॉट डाउन करके रखी हैं। ऐसे समय में अपॉर्चुनिटी को देखना तो जरूरी होता ही है। आपके वल्नरेबल एरियाज क्या हैं, आप ऐसी क्या क्या एरियाज अपने बिजनेस में देख रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है, उसको जॉट डाउन करना चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछें एज अ बैंकर मैं क्या जॉट डाउन करता हूं, एज अ प्रोफेशनल मैंने क्या जॉट डाउन किया है, तो वो होता है फिनेंस, ऑपरेशन, बिजनेस मॉडल, पीपल, प्रोसेसेस। इसमें मैं आप सबको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने ये मीटिंग में मुझे शामिल किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग उससे बाहर हैं। None of you have allowed this feeling to sink in. बट जब हम ये वल्नरेबल एरियाज को जॉट डाउन कर लेते हैं कि मेरे वल्नरेबल एरियाज क्या हैं, तो वहां से फिर सॉल्यूशंस निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप फाइनेंस, सबसे पहला पॉइंट मैंने शेयर किया फाइनेंस, वो इसलिए भी क्योंकि जब एमएसएमई की बात आती है तो फाइनेंस एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है। आज अगर आप किसी बैंक की बात करें, कोई भी बैंक इंडिया में, हम सब बैंक्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर्स को, मैं नए कस्टमर्स की बात बहुत ही कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकता हूं, बट आप जिस बैंक के भी कस्टमर हो, उन्होंने पूरी तरह गवर्नमेंट की न्यू जो रेगुलेशंस आई हैं उन पर काम करना शुरू कर दिया है। और मैं सीधा वहीं पर आता हूं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपके जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं उनको 20% जो आप है एडहॉक, ये जो एनसीजीटीसी करके जो बॉडी है उसमें फंड करने के लिए बोला है। उस 20% में आपको ये इमरजेंसी फंड की तरह यूज करना है। उसके लिए कोई भी बैंक आपसे एडिशनल कोलैटरल नहीं मांग रही है। उसके लिए आपको अगले 12 महीनों में कोई ईएमआई जो है वो नहीं भरना है, सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन करना है और उसके बाद 36 इंस्टॉलमेंट्स में होने हैं। आपको रजिस्टर्ड एमएसएमई होना चाहिए। आप अगर जीएसटी में एप्लीकेबल हैं तो आपको जीएसटी
सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि मैं आपके मन में जो अगर कोई दुविधा हो कि बैंक्स हेल्प कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम हर दिन, मैं एज एन इंडिविजुअल हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग केसेस में इन्वॉल्व हूं जहां पे हम लोग फायर फाइटिंग में जल्दी से जल्दी उनको फंड अरेंज कराने की कोशिश करते हैं, और ये गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अंदर है। ऐसे ही समय में जब इमरजेंसीज आती हैं या जैसे ऐसे पेंडेमिक्स आती हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम हो, यहां पर सबसे ज्यादा काम आता है आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। आप किस तरह के बिजनेस में कनेक्टेड हैं, आपके आसपास के बिजनेसेस कैसे हैं, क्या आप उनसे अपने बिजनेस को शेयर कर पाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी फाइनेंस अभी वीक हो रही है और आपके बैंक्स आपको मदद नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि अभी सारे बैंक्स अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को केटर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर एज अ न्यू कस्टमर आप किसी बैंक में जाते हैं तो आपको एग्जैक्टली वही अटेंशन नहीं दिया जाएगा शायद से जो आप एंटीसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और अब चूंकि लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है, तो अब बहुत ज्यादा एमएसएमईज जो हैं वो हमारे पास अपनी अपनी ग्रीवांसेस, अपने अपने एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हैं, तो वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम लोग केटर कर रहे हैं। ये तो था मेरा एज अ बैंक क्या हम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। अब मुझे अलाउ कीजिए कि एज अ बैंक मैं आपको क्या सजेस्ट करना चाहता हूं एज एन एमएसएमई। किसी भी एमएसएमई को जब आप किसी बैंकर से मिलते हैं, या फॉर दैट से किसी भी अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स से मिलते हैं या अपने सप्लायर्स से मिलते हैं, तो 3 चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि अगर ये 3 चीजें हैं तो अच्छी हैं या बुरी हैं वो सेपरेट है। आप वेल प्रिपेयर्ड हैं वह ज्यादा मायने रखता है। अपने प्रोफाइल पे आप कितना काम कर रहे हैं। आज मैं एक XYZ इंटरप्राइज का ओनर हूं, प्रोप्राइटर हूं। मैं आज एक अविनाश चंद्रा नाम के बैंकर से मिलने जाता हूं। क्या मेरी प्रोफाइल बिल्कुल सही है? क्या मेरी पिछली बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट नहीं भी है, क्या मेरा डे टू डे सेल्स, मंथली सेल्स का कुछ मैं उनको दिखा सकता हूं? क्या अगर मैं उनसे ये पूछूं कि आपके पास मनोज जी क्या आपकी बैलेंस शीट या ये आपका सेल्स जो आप मुझे दिखा रहे हैं फिगर, क्या आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुझे ये सर्टिफाई करा के ला सकते हैं? क्या आप एमबीसी जैसे किसी बॉडी का रेफरल ला सकते हैं जो कि बड़ा ही ऑथेंटिक माना जाता है? तो आज कोई भी बैंक जब आप उनको अप्रोच करते हैं तो फेस ऑन द फेस ऑफ इट यही 3 चीजें देखते हैं कि आपकी प्रोफाइलिंग कैसी है, हाउ यू लुक लाइक एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एंटरप्राइज, आपके नंबर्स कैसे हैं। अच्छे बुरे तो बाद में आता है, क्या आपने उसको डॉक्यूमेंटेड करके रखा है? जैसे अभी एमबीसी में डिस्कशन हो रहा था, कितनी लीड शेयरिंग हुई, कितनी कॉन्टैक्ट शेयर किए लास्ट सेशन से अभी तक, अगले सेशन में कौन बोलेगा, क्या ऐसा ही आप अपने बिजनेस के लिए मुझे बता सकते हैं कि पिछले महीने ये सेल्स हुआ, उससे पहले ये सेल्स हुआ, पिछले महीने मैंने 4 नए कस्टमर बनाए, अगले महीने मेरा 10 का पाइपलाइन है, मुझे 4 नए कस्टमर से इतना बिजनेस मिला, उससे पहले मुझे 2 ही कस्टमर मिले थे, उसकी वजह ये थी कि मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन बहुत इंस्ट्रिंजेंट था, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। सच मानिए एमबीसी फैमिली, अगर आपका लैंग्वेज ये है तो बैंक मैनेजर आपके बिजनेस कार्ड को अपने ड्रॉर के ऊपरी हिस्से में रखता है और आपको टाइम देता है कि एमबीसी फैमिली हम फलाने डेट को मिलते हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स ले आइए। तो आज अगर मैंने 16 साल का अनुभव लिया है, मैं महाराष्ट्र के, बहुत ही प्राउडली ये चीज मैं क्लेम कर रहा हूं, महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया है। और ये मैं कोई टेलीफोन और मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल प्रेजेंस, डीआईसी ऑफिसेज, एमएसएमई डीआई,
NSIC ऑफिसेज, मैं हर ऑफिसेज में विजिट कर चुका हूं और आप लोगों के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर चुका हूं। और जहां कभी भी मुझे मौका दिया गया है, मैंने यही चीज कही है कि पहले ये 3 चीजें, अपनी प्रोफाइल, अपनी बैलेंस शीट, अपने नंबर्स और अपने रेफरल्स, और अगर ये 3 चीजें हैं तो बैंकर्स की कमी नहीं होती है। ये एक हो गया। ये सब बैंकर्स रोल है। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको MSME की बातें गिना रहा हूं। ये MSME, ये एक बैंकर्स का रोल है कि वो अपने कस्टमर्स को चेक करे। और वो कैसे चेक करता है, मैं सीधा वो बचा रहा हूं, आपका टाइम सेव कर रहा हूं, क्योंकि शायद टाइम की यहां कंस्ट्रेंट होंगी टाइम। उसके बाद क्या होता है ऐसे समय में, जब आपने फाइनेंस देख लिया, जो मैंने पहली बात कही थी आपसे, आपको क्विकली अपने बिजनेस मॉडल पे ध्यान देना चाहिए कि क्या कोविड से पहले जो मेरा बिजनेस मॉडल था वही बिजनेस मॉडल अभी मेरा चलेगा, क्या कोई जरूरत है ट्वीक करने की। मैं MBC से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले सेशन से अगर टाइम निकाला जा सके तो 5 मिनट एक बिजनेस मॉडल को दिया जाए। वो MBC की टीम फिगर आउट कर सकती है कि इस मेंबर का बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इनसे हम सुनते हैं। जैसे अभी एक बिजनेस ने प्रेजेंट किया, आई एम सॉरी मैं नाम उनका भूल रहा हूं, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे मालूम नहीं था कि इतना हैसल फ्री हो सकता है एक टेनेंट और एक हाउस ओनर के बीच ये रजिस्ट्रेशन होना। ऐसे बिजनेस मॉडल को कैटेगरिकली आप लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि हम जैसे लोग भी आए तो उनको भी इंफॉर्मेशन मिले, वो भी नॉलेज लेके जाएं। एक और चीज, जब मैंने बिजनेस मॉडल की बात कर दी है, तो काफी टाइम क्या होता है कि आपके जो बायर्स हैं वो एनफ हिंट देते हैं कि वो आपके सप्लायर्स के बहुत करीब होते हैं। और एक अच्छा बायर एक अच्छा सप्लायर भी होता है, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर किया है, क्योंकि वो कुछ और सप्लायर से कनेक्टेड होता है। और एक अच्छा बिजनेस जिनसे मैं सीख पाता हूं या जिनसे मैंने पिछले 15 सालों में सीखा है, वो अपने कंपटीशन की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी इज्जत वो अपने बायर्स की करते हैं। क्योंकि बायर्स आपको वही बताएगा कि वो क्या खरीद रहा है, बट आपका कंपटीशन आपको ये बताएगा कि उसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से मार्केट में एक्सेप्ट कैसे हो सकता है। तो ये एक बहुत कमी देखता हूं मैं इंडियन बिजनेसेस में, कि अपने कंपटीशन के प्रति रिस्पेक्ट बहुत कम रहता है। मैंने मनोज भाई से शेयर किया था, राणे साहब से, कि राणे साहब ये बात एक XYZ बैंक की नहीं है। भारत एक इतना बड़ा देश है कि बैंक्स कितने भी आ जाएं, मार्केट छोटा नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम यही है कि इसी MBC के वाशी ब्रांच में यस बैंक भी आएगा और XYZ भी बैंक आएगा। वो थोड़ा पालघर में जब यूनिट ओपन करेंगे तो वहां जाने से कतराएगा, क्योंकि वो दूरी बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट छोटा है, हम एक ही सेगमेंट पे बार बार अटैक करते रहते हैं, प्राइसिंग को खराब करेंगे, हम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो मेरा ये मानना है कि आपको अपने कंपटीशन को भी बहुत ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहां से आपको मार्केट इंसाइट सबसे ज्यादा मिलता है, आपके बायर से मार्केट इंसाइट नहीं मिलता है, आपके कंपटीशन से मार्केट इंसाइट मिलती है। तो यहां पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इंप्रूव्ड एंड न्यू प्रोपोजिशन, उसमें ये प्रोपोजिशन जो है MBC फैमिली, उसी में आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आ जाते हैं। ये जिस तरह का इमरजेंसी टाइम होता है, वहां पे आपका कम्युनिकेशन बहुत काम आता है, कि आप अपने मार्केट से बात कैसे कर रहे हैं, आप अपने सप्लायर से बात कैसे कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन कर रहे हैं। अब मुझे अभी धनश्री मैम याद रहेंगी, उन्होंने कहा धन की बात तो धनश्री। मुझे याद रहेगा कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके पास 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है। तो ऐसे, वैसे तो कम्युनिकेशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट जब टाइम खराब आता है, जब एक्सटर्नल टाइम खराब मतलब एक्सटर्नल मार्केट खराब आता है, तब आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन मियर कम्युनिकेशन है या
उसमें भी आपने स्ट्रैटेजी डाल दी है धनश्री मैम की तरह। तो ये मैंने एक बताया है। अभी मैं आपसे 3-4 चीजें और शेयर करूंगा कि जो मैंने आपसे कहा कि हर एक बैंक, प्लेजर धनश्री जी मैम, कोई भी एमएसएमई आज अगर ये कह रहे हैं कि बैंक ध्यान नहीं देती हैं या बैंक ने मेरी बात नहीं सुनी, तो वापस से आपको वही 3 चीजों पे जाना चाहिए: प्रोफाइलिंग, अपनी बैलेंस शीट और अपने रेफरल्स पे। अब मैं 2-4 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताता हूं आपको कि कोई भी बैंक जो है वो लेंडिंग और डिपॉजिट के बिजनेस में नहीं है, वो उनका काम है। जैसे एमबीसी का ये काम है कि वो नए मेंबर्स को बुलाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, बट उनका बिजनेस क्या है? उनका बिजनेस है नेटवर्क के थ्रू बिजनेस को ग्रो करना। ये एमबीसी का बिजनेस है। वैसे ही एक बैंक का बिजनेस है रिस्क लेना। लोन देना और डिपॉजिट लेना बिजनेस नहीं है, काम है। तो जब आप किसी का बिजनेस समझ जाते हैं तो आप उसकी वर्किंग भी समझने लग जाते हैं, और जब तक आप किसी का वर्किंग नहीं समझते हैं आप उसका रेस्पेक्ट और उसका अटेंशन नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए एमएसएमई के लिए ये पर्टिनेंट हो जाता है कि आप एक बैंक का बिजनेस समझिए। तो एज ए बैंक हमारा बिजनेस है रिस्क लेना। कैसा रिस्क लेना? मैं आरबीआई से उधार लेता हूं, या मैं ग्लोबल मार्केट से उधार लेता हूं, या मैं इंडियन मार्केट से, बॉन्ड मार्केट से पैसे रेज करता हूं, और वो पैसे मैं एमबीसी के किसी मेंबर को देता हूं जिनको मैं पहली बार जान रहा होता हूं। क्या इसमें रिस्क नहीं है? क्या आपके कोलेटरल लेने से मेरे पैसे के आने की वापसी पक्की हो जाती है? क्या मैं आपके घर को इनकैश करने के बिजनेस में हूं? ये तो मुझे आता भी नहीं है। उसके लिए तो मुझे आरबीआई के नॉर्म्स में स्टिपुलेटेड कंपनीज को हायर करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उन्होंने इस प्रॉपर्टी की रेटिंग कैसे की है, तब जाके मैं आपके प्रॉपर्टी को एनकैश कर सकूंगा अगर आप डिफॉल्ट करेंगे। तो इसीलिए आप ये बात समझिए कि जब कोई बैंकर आपसे कोलेटरल की बात करता है तो उसके 2-3 रीजंस होते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब ऐसे एपिडेमिक आए, जब ऐसा टफ टाइम आए, तो आप अपने बिजनेस को फट से ना छोड़ दें। क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को फटाक से छोड़ देंगे तो एक बैंक का जो फंड है, जो उसने आपको लेंड किया हुआ है, वो उनके पास वापस नहीं आएगा, और उस पैसे पे वो ऑलरेडी इंटरेस्ट भर चुका है। तो जब आपका कुछ कोलेटरल जब आपने बैंक को दिया रहता है तो आप आखिरी सांस तक लड़ते हैं, क्योंकि ये आपके वर्चस्व की लड़ाई होती है, ये आपके घर के छत की लड़ाई होती है। तो इसीलिए आप अंतिम समय तक हार नहीं मानते हैं। दूसरा, हर इंसान इस सोसाइटी में अपनी इज्जत के लिए भी काम करता है। आई एम श्योर एमबीसी फैमिली में हर कोई दिन रात सुबह से शाम तक पैसे के लिए काम नहीं करता होगा। हर इंसान, हर मेंबर में, एमबीसी के फैमिली मेंबर में एक एलिमेंट ऑफ प्राइड होगा जो आप आपस में शेयर करते होंगे। तो बैंक आपकी प्राइड को गिरवी रखती है, आपके घर को गिरवी नहीं रखती है। क्या करेगी एक बैंक 1000 कोलेटरल लेके? बट वो 1000 प्राइड को गिरवी रखना चाहती है। गिरवी इन द सेंस कि वो बोरो करना चाहती है, आपको रियलाइज कराना चाहती है कि देखिए साहब, आपने जो मेरे पैसे लिए हुए हैं उसके बदले में आपने अपना प्राइड मुझे दिया हुआ है। वो इसलिए लेती है क्योंकि मैंने अपना प्राइड किसी और को दिया हुआ है, मैंने मार्केट से पैसे लिए हुए हैं, मैंने आरबीआई से लोन लिया हुआ है। तो आपके प्राइड और मेरे प्राइड में जब इंटरकनेक्शन होगा तभी हम दोनों अच्छे से काम कर पाएंगे। तो मेरा ये एमबीसी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि जब कोई बैंकर आपसे कोलेटरल की बात करता है तो उस पर क्रोधित ना होइए।
कि ये कोलेटरल की बात क्यों कर रहा है? एज ए बैंकर मैं आपको कह सकता हूं कि मैं एटलीस्ट 50 से 100 ऐसे केसेस में शामिल हूं जो सीजीटी एमएससी के अंदर फंड किया गया है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, उसमें एक पैसे की कोलेटरल नहीं ली जाती है। बट अगर आप गवर्नमेंट के रेगुलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें लाइंस बहुत ही स्टिपुलेटेड हैं कि कैसी कंपनीज को आपको सीजीटी एमएससी में देना है, उनका विंटेज क्या होना चाहिए, उनका। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं एमबीसी फैमिली 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास, बट मैं नासिक में किसी को नहीं जानता हूं, मैं गोवा में किसी को नहीं जानता हूं, मैं औरंगाबाद के किसी बिजनेस को नहीं जानता हूं, मैं मुंबई में, अभी आपने किसी ने ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी की बात की, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किसी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी को नहीं जानता हूं, तो क्या आपको मेरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे? क्या आपको ये फील नहीं होगा कि ये कैसा बैंकर है यार, कि 16 साल की बात कर रहा है, महाराष्ट्र के कैपिटल में बैठा हुआ है, और महाराष्ट्र, आप अगर मुझे आज जालना के बारे में पूछेंगे और मैं बताऊंगा कि मुझे आइडिया नहीं है कि जालना किधर है, तो क्या ये गलत नहीं होगा मेरे पर कि मैं एक बैंकर हूं, मैं एमएसएमई में होने के बात क्लेम कर रहा हूं, और मैं एमएसएमई जहां जहां कॉन्सेंट्रेटेड है वो मुझे मालूम ही नहीं है। मुझे मालूम नहीं है वालू चिकल थाना क्या है, मुझे मालूम नहीं है सातपुर एमआईडीसी क्या है, मुझे मालूम नहीं है चाकन क्या है। मतलब मैं एक सही बैंकर नहीं हूं। मैं आई शुड नॉट क्लेम दैट आई एम पार्ट ऑफ एमएसएमई यूनिवर्स। तो जब उसी तरह जब आप मुझे कहते हैं यस बैंक के एक ब्रांच में जाके आप कहते हैं कि मैं 10 साल से बिजनेस में हूं, बट मेरे पास देने के लिए कोलेटरल नहीं है, क्या मेरे मन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि 10 साल आपने बिजनेस किया है, आपके पास कोलेटरल क्यों नहीं है? अगर रैशनल है उसमें तो हम लोग आपको फंड करेंगे सीजीटीएमएस में। बट आप अपने आप से पूछ के बताइए मुझे कि क्या आप मुझे एज ए बैंकर लेना चाहेंगे? मैं अगर कल एमबीसी को, यस बैंक से कोई भी आके अगर आप एमबीसी में कहता है राणे साहब से कि राणे साहब अगली मीटिंग के लिए आप मुझे ले लीजिए, तो क्या आप उनको स्पीकर ले लेंगे? आपने आज मुझे स्पीकर इसलिए नहीं बुलाया है कि अविनाश चंद्रा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यस बैंक। सच्चाई इसमें भी है कि आपने मुझे इसलिए भी बुलाया है क्योंकि सागर साहब ने, मासिया के जनरल सेक्रेटरी ने आपको बताया कि ये बैंकर थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। इस बैंकर ने एमएसएमई में जम के काम किया है, इसीलिए आज रेस्पेक्टेड एमबीसी ने मुझे यहां समय दिया है। तो यही चीज हो जाता है जब आप टेबल को टर्न कर देते हैं। एक बैंकर दो चीजों में काम करता है। मैं वापस एक बहुत ही नेचुरल लैंग्वेज पे आता हूं कि एक बैंकर जो है, जो आप रोल की बात करते हैं, जब किसी को आप रोल देते हैं तो आप उसको दो चीजें देते हैं, एक राइट्स देते हैं और एक ड्यूटीज देते हैं। जब आप किसी एक, मैं इसको थोड़ा और लेमन टर्म में जा रहा हूं, जब कोई एक फिल्म, कुछ फिल्म डायरेक्टर्स की भी बात हुई, जब कोई फिल्म डायरेक्टर एक एक्टर को साइन इन करता है एमबीसी फैमिली, तो उसको एक रोल देता है, और जब वो रोल देता है तो उसको दो चीजें देता है, एक तो राइट्स देता है और एक ड्यूटीज देता है। ड्यूटीज उसकी ये है कि वो अच्छे से रोल परफॉर्म करे, जहां भी शूटिंग हो रही है, अगर 8 बजे का टाइम है तो वो 8 बजे आए, अपने स्टारडम की वजह से वो 12 बजे ना पहुंचे। उसको ये रोल देता है, उसको ये ड्यूटी देता है कि उसको अपने डायलॉग्स याद होने चाहिए। उसको वो ड्यूटी देता है कि उसके आसपास के जो एक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, उनसे वो अच्छे से पेश आए, वो अपने स्टारडम ना चलाए। तो ये सब आप उसको ड्यूटी देते हैं। ड्यूटी के साथ आती है राइट्स। एक एक्टर की राइट्स क्या है? उसकी ये राइट है कि वो आपको बताए कि मैं एक अमेरिकन बॉर्न इंडियन का रोल नहीं कर सकता हूं, मैं एक हिंदी भाषी हूं, मैं हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, मी प्रयत्न करतो पण मी मराठी बोलू शकतो नाही, इसको आपको मेरे अधिकार क्षेत्र में देना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अमेरिकन बॉर्न इंडियन का रोल करूं, बट मेरे राइट्स एंड ड्यूटीज आपको रेस्पेक्ट करने पड़ेंगे। उसी तरह एक बैंकर की ये ड्यूटी है कि वो सोसाइटी को फंड करे, वो अच्छी कंपनीज को बढ़ावा दे, वो जो यंगस्टर्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए
पूरा सहायता करे, ये मेरे ड्यूटीज हैं। बट आप मुझे बताइए एमबीसी फैमिली, क्या ये मेरा राइट नहीं है एज ए बैंकर कि मैं ये एसेस करूं कि मेरा दिया हुआ लोन वापस मुझे डिसाइडेड एंड अग्रीड टाइम पे वापस मिल जाए? क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? और अगर आप ये मानते हैं कि हाँ ये एक बैंक का अधिकार है उसको पता करने का कि उसके दिए हुए लोन की वापसी समय पर होगी कि नहीं, अगर आप इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो यकीन मानिए एमबीसी फैमिली, बैंकर्स की लाइन लग जाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पीछे। अगर आप इस माइंडसेट के हैं तो मैं आपको बताता हूं, आपके बैलेंस शीट में भी वो हेल्प करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। वो अपने रिस्क टीम से लड़ लेंगे कि नहीं, मैं मिस्टर राणे को जानता हूं, ये रेशियो फिट नहीं बैठ रहा है, थोड़ा फंड साइज, लोन साइज कम कर देते हैं, बट इनको देते हैं, मैं इनको जानता हूं, मुझे इनका रेफरेंस पता है, मैंने इनकी वर्किंग देखी है, ये एक रेप्यूटेड एमबीसी के फैमिली मेंबर है। तो जब आप ये सारी चीजें देखने लग जाते हैं तो एक बैंक्स का रोल आप समझने लग जाते हैं। फिर उसी तरह एक सेक्टर की बात आती है। आज आप मुझे बताइए, क्या आज मैं एक रिटेल चेन को कोई बैंक बहुत ही कॉन्फिडेंटली फंड करने की बात सोचेगा? आज आप देख लीजिए रिटेल चेन की क्या हालत है। हाँ, आज मैं किराना स्टोर को कॉन्फिडेंटली फंड करने की बात सोच सकता हूं, उसको उनको पर्सनल लेन देने की बात सोच सकता हूं, क्योंकि पिछले 5 महीने में जो हमारी कॉलोनी के किराना स्टोर्स ने अर्न किया है वो पिछले 10 महीने से ज्यादा किया है। तो एक बैंकर ये भी देखता है कि आप किस सेक्टर में हैं। क्या आप इस सेक्टर में सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये इजीली आ सकते हैं? जब किसी सेक्टर में एंट्री बहुत इजी होता है, आप मुझे बता सकते हैं मेरे टाइम में 5 मिनट पहले मुझे या 2 मिनट पहले बस कर सकते हैं, मैं रैप अप कर सकता हूं क्विकली। तो एक बैंकर जो है वो सेक्टर भी स्टडी करता है कि आप किस सेक्टर में हैं। क्या आपका सनराइज सेक्टर है, या कुछ अगर ऐसे इमरजेंसी आई तो आप रैप अप करके घर जाकर दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपकी एंट्री बहुत इजी हुई है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब एंट्री बहुत इजी होती है तो एग्जिट उतनी ही इजी हो जाती है। जब आप आईआईटी में एडमिशन लेते हैं तो एंट्री बहुत टफ होती है, तो उनको उनके बिजनेस से कोई इजीली निकाल नहीं सकता है। तो जैसे एंट्री टफ है वैसे ही उनको कोई फोर्स करके इजीली एग्जिट नहीं करा सकता है। पर जब आप कोई छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हैं, मैं ये नहीं जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, बट ये एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है कि जब एंट्री इजी, एडमिशन इजी, एग्जिट। कोई क्लासेस का कोई ये नहीं है, आप बंक कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक अच्छे स्कूल में जाइए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ ही एक अच्छा प्रोफेशनल होता है, बट मैं बस ये कह रहा हूं, प्रोसेस की बात कर रहा हूं कि अगर आप एक नॉर्मल स्कूल को देखिए तो बच्चे गेट के बाहर बैठे रहते हैं। वही स्कूल में अगर प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट हो, अगर मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट हो, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, कोई लड़का या कोई लड़की कैंपस के बाहर नहीं बैठ सकते। बट एक अच्छे स्कूल में ये चीज आपको जनरली सालों भर देखनी पड़ती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जब आप अपने सेक्टर के बारे में बात करते हैं, जब आप अपनी कंपनी के बारे में बात करते हैं, वही नॉलेज आपको अपने सेक्टर के बारे में बोलना चाहिए। जैसे मैं एक और चीज शेयर कर रहा हूं, जैसे इन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने बताया कि एनुअली जनरली इन्होंने 8000 हैप्पी कस्टमर्स बनाए हैं। जो इन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन का, मुंबई दुबई का जो इन्होंने एग्जांपल दिया था, एक और डिग्री ऑफ ऑथेंटिसिटी उसमें ऐड हो जाएगा जब वो टेंटेटिवली ये भी पता कर पाए कि मुंबई में सालाना लगभग इतने एग्रीमेंट होते हैं। अब आप बताइए, जब वो ये बताएंगे कि सालाना इतने एग्रीमेंट होते हैं, मैं तो अभी 8000 पर ही पहुंचा हूं, मेरा इतना बाकी है, आप मुझे हेल्प कीजिए, तो एक बैंकर के दिमाग में एक घंटी बजेगी।
आप न सिर्फ उसको अपना सेक्टर बता रहे हैं, बट उसको एक इनकम बता रहे हैं कि 8,000 to 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इन केस। तो ये सारे रोल्स बैंकर्स के ही हैं। बट अगर मैं वो लैंग्वेज आपको शेयर करता कि हमारी क्रेडिट टीम क्या करती है, हम ये सब मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरी क्रेडिट टीम करती है, जो मेरी लीगल टीम करती है, जो मेरी प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन वाली टीम करती है, बट मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता था। वरना मैं सब बोल रहा हूं बैंक का रोल ही, वही रोल मैं आपसे बता रहा हूं जो कि आप समझिए। उस रोल का कोई फायदा नहीं जो मेरे कस्टमर्स नहीं समझ पाए। तो मैं अपने रोल्स को आपको समझा रहा हूं। तो मैंने एक बताया आपको अपनी प्रोफाइलिंग, एक बताई आपके नंबर्स, आपके सेल्स, आपके प्रोजेक्ट्स, ये सब रेडी होने चाहिए। आप लिस्टेड कंपनी हो, आप 10 करोड़ की कंपनी हो, आप 10 लाख की कंपनी हो, आपको इस लैंग्वेज में बात करनी ही चाहिए। आपको रेफरल सिस्टम स्ट्रांग रखना चाहिए। I am part of MBC. This is what MBC is. This is what these many members are there. I am part of that. इसको एक क्रेडेंशियल के रूप में आपको यूज करना चाहिए। जब आप कहीं जाते हैं तो न सिर्फ अपनी कंपनी को मार्केट कीजिए, बल्कि अपनी फैमिली को मार्केट कीजिए। उस फैमिली को एक नाम बनाइए ताकि कल को आपको एमबीसी के नाम से भी जाना जाए। ये हम लोग करते हैं। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जब हम किसी कंपनी को फंड करते हैं, काफी बार हम लोगों को मेल आता है कि क्या तुम अविनाश, क्या आप किसी इस कंपनी का, ये कंपनी फलाने एसोसिएशन में होने का क्लेम कर रही है, क्या आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं? और मैं वो करता हूं, तो ये उनके फायदे में चला जाता है। तो आपको ये करना चाहिए, रेफरल्स, बैलेंस शीट, प्रोफाइल, और बाद में आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए आपकी ये सिविल स्कोरिंग क्या है, आपके कंपनी की सिविल स्कोरिंग क्या है, आपकी पर्सनल सिविल स्कोरिंग क्या है। आप दो खर्चे बंद करके अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कीजिए। अगर जरूरत हो तो क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिए, नहीं तो अपने फंड से यूज कीजिए। अगर क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो किसी दिन क्रेडिट कार्ड वाले स्पीकर को बुलाइए और उनको बताइए कि वो आपको बताएं कि क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे करना चाहिए, कैसे 52 डेज का पीरियड दिया जाता है, और कैसे एक क्रेडिट कार्ड का मिसयूज आपके एंटायर सिविल स्कोरिंग को खराब कर सकता है सालों के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एज एन एमएसएमई अपने आप पर काम करना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई में जो हैं वो आप ही हैं। आप ही एक बायर हैं, आप ही परचेज मैनेजर हैं, आप ही सेल्स हेड हैं, आप ही ऑपरेशन हेड हैं, आप ही सीईओ हैं, आप ही पार्टनर हैं, आप ही प्रोप्राइटर हैं। तो आप पर दारोमदार बहुत हो जाता है। इसीलिए इन सारी चीजों को आपको एक एक करके जॉट डाउन कर लेनी चाहिए, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप प्रायोरिटी सेक्टर में फॉल कर रहे हैं। एक बैंक आपको लेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आरबीआई के नॉर्म्स को पूरा मैच नहीं कर पाएगा। आपको अपने सेक्टर को स्टडी करते रहना चाहिए। आपके सेक्टर में वेयर इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, और यू हैव जस्ट स्टार्टेड एंड दैट इज द लिमिट। उस पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए। आपको अपने करंट अकाउंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे बैंक में एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप हमारे करंट अकाउंट होल्डर हैं 1 साल 2 साल में, तो हम आपके बैलेंस शीट को देखने की इच्छा नहीं करते हैं, हम आपको उसी के बेसिस पे फंड दे देते हैं, वो भी सामने से मेल डाल के कि आप हमारे कस्टमर हैं, यू होल्ड अ करंट अकाउंट विद अस एंड यू आर एलिजिबल फॉर दिस मच ऑफ फंड। तो अपने करंट अकाउंट के प्रति बहुत कॉन्शियस रहिए। कोशिश कीजिए एक भी चेक बाउंस ना हो, ना तो आपका रिसीवेबल चेक बाउंस हो, ना ही जो आपने चेक इशू किया है वो बाउंस हो। चंद्रा सर, सारी चीजें आपको कैटेगरिकली देखनी चाहिए, और तब जाके जब आप एक बैंकर से मिलते हैं, तो मैं आपको बैंकिंग फ्रेटर्निटी की, ऑन बिहाफ ऑफ बैंकिंग फ्रेटर्निटी मैं ये कहना चाहता हूं कि एमएसएमई होल्ड्स अ वेरी हाई प्लेस in our working and in our hearts. We understand, we know, we believe that if today दुनिया भर की कंपनीज अगर इंडिया में आना चाहती हैं, उनकी वजह आप हैं और उनकी वजह इंडियन बैंकिंग सिस्टम है।
तो हम Chandra sir. दोनों में sure Excuse me, sir. 5 minutes to go, sir. sure 5 minutes. so Yeah. Thank sure you. so there is a connection that you are very much looked after, I mean sought after rather, and so is Indian banking system. We always discuss MSME in our internal meetings. We always discuss which are the clusters where MSMEs are doing good, which are the bodies. We discuss industry associations, and I wish very quickly we discuss MBC as well. I wish this start of the association between MBC and Yes Bank through this platform continues for a longer time. I wish many of you come forward for our services. I assure we would come forward equally to cater to you. I wish both the MBC and Yes Bank interact quite often. I wish we discuss more and more knowledge sharing forums. I wish all the very best to MBC members. I wish that you allow us to be part of your meeting later on again and again. Thank you very much. I express my gratitude once again. Thank you very much.